morning students. Yes, today we are going to discuss with our last topic of your chapter change in profit sharing ratio. One thing I want to clear firstly, okay, for the syllabus that I have given you for semester first, that is your assessment, this last topic I have not considered this topic, but still I am sending you the video so that our chapter will be completed. But this topic will not come in your assessment. October that assessment that we are conducting semester first. Okay, so let's start with our topic. This topic is revaluation of assets and liabilities. In this topic there are further two topics, two cases. Okay, when in the first case the partners want to record the revised values in their books, and the second case is when the partners do not want to record the revised values. I have written these cases here. First case, when the partners want to record the revised values. These questions are from 34 to up to 40. In this topic, we have to first make one revaluation account. Revaluation account की nature nominal है. That is made to record the changes in the assets and liabilities. Revalue करते हैं. Then new capital account and revised balance sheet is to be made. But this topic we are going to discuss in our next chapter. So I am not going to discuss questions from 34 to 40 still in this topic. In the next topic, when we will discuss the revaluation account, how to make, then we will do such questions. Now the second case is when the partners do not want to record the revised values. Revised values का मतलब होता है changed values, altered values को record नहीं करना चाहते हैं. Then how to do our question? Then how to record the changes and how to do that question. Then in such, firstly I have written few points. Okay, these steps are to be followed while calculating the question. The first step is calculation of profit and loss without opening revaluation account, and second just calculation of gain or sacrifice that we have already discussed by the formula old minus new ratio, and then adjustment entry is to be passed, and then capital account and balance sheet is to be made. These questions are from 41 to 44. So I have taken question number 42nd from your book, in which three partners are there, L, M, and N, and their old ratio is equal 1:1:1, and the new ratio is given. They have changed their ratio, that is 4:1. And in this question, the balance sheet is given to you, and then after that it is written the partners have changed their ratio to 4:1. For this purpose, goodwill is to be valued at 2-year purchase of average profit of the last 4 years. Firstly, we have to calculate the goodwill, and then after that, then they further agreed that the provision for doubtful debt is to be increased, stock is to be appreciated, fixed asset appreciate where creditors, there is a change in creditors also. And one important line that I am going to read, listen carefully, कि how we will come to know कि हमने question first case के according करना है कि second case के according करना है. It is clearly written here, partners do not desire to record the revised values of assets and liabilities in the books. यानी partners revised values को record नहीं करना चाहते हैं, तो it means हमारा question ये second case के according होगा. Okay, and then they also do not, they want to desire to leave the reserve and surplus undistributed. मतलब वो रिजर्व और सरप्लस को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं. उसमें भी हमने दो केस करे थे. सेकंड केस में हम जब वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, फिर हम क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस और गेन निकाल कर देन वी पास द एडजस्टमेंट एंट्री. यानी इसकी ट्रीटमेंट भी सेकंड केस के अकॉर्डिंग होगी. और गुडविल को हम हमेशा ही सेकंड केस मीन्स हम हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं. और बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री, और आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया. तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इस फर्स्ट स्टेप से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो इस फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस में दिया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2000. प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी बढ़ने का मतलब हुआ लॉस. तो हमने क्या लिखा, लॉस ड्यू टू increase in provision 2000. Next point is there कि stock is to be appreciated by 20%. अब आपका stock हमें given है, that is given 1,80,000, और 20% से stock आपका appreciate कर दिया, तो आ गया 36,000. stock बढ़ने का मतलब whenever the asset increases there is a profit. तो हमने लिखा profit due to
इंक्रीज इन स्टॉक दैट इज 36,000, ये लॉस को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, एंड देन आफ्टर दैट फिक्स्ड एसेट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो इट मीन्स लॉस, तो लॉस हमारा कितना आ गया, फिक्स्ड एसेट्स हैं 2,20,000 और 10% आ गया मेरे पास 22,000 लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स 22,000। उसके बाद लास्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स टू बी टेकन एट 49,000 और यहाँ पे क्रेडिटर्स की वैल्यू है 58,000। 58,000 से वैल्यू 49,000 होगी। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होने का मतलब इट मीन्स अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें कितना हो गया, प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये मेरे पास प्रॉफिट 9,000 ओवरऑल। अब हमने चेक करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। अब हमें लॉस के यहाँ पे आइटम्स गिवन है 22 और 2,000 24,000 है और यहाँ पे 36,000 और 9,000 45,000 का प्रॉफिट है। तो दोनों का डिफरेंस मेरे पास प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ही कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 21,000। अब इस पॉइंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री इस पॉइंट की भी होगी, एक हमें जनरल रिजर्व गिवन है उसकी भी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड केस होना है, मींस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट, तो मैंने इसमें जनरल रिजर्व को भी ऐड कर लिया। जनरल रिजर्व इन द बैलेंस शीट इट इज गिवन 42,000 42,000 आ गया। अब इसी के अंदर हम गुडविल को भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि तीनों की ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड केस मींस सबसे पहले गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट एंट्री करके होनी है। तो अलग अलग करने के बजाय आई जस्ट एडेड अप ऑल दीज 3 आइटम्स। तो गुडविल की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी और गुडविल के लिए हमें गिवन है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का सबसे पहले हमें एवरेज निकालना है, तो हम यहाँ पे पहले गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई आपका 2 ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाई द एवरेज प्रॉफिट्स। अब एवरेज प्रॉफिट मेरे पास आ गए, हमें गिवन है ईयर, एक तो 20,000 लॉस है, ब्रैकेट में ले लेती हूँ, प्लस 48,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 4। ये मेरे पास ऐड करके और डिवाइडेड बाय 4 करके ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। इसको सॉल्व करके इट कम्स टू 42,000 और गुडविल की वैल्यू 2 ईयर्स ऑफ परचेज है 84,000 गुडविल आ गई और गुडविल की ट्रीटमेंट भी हमने सेम केस से करनी है। ये मेरे पास टोटल आ गया 1,47,000। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद गेन और सैक्रिफाइस, अब हमने ये कैलकुलेट करना है हमारा चेंज इन रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, एक एल का चेंज ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस 4/7, एल एम 1/3 माइनस 2/7 और एन का 1/3 माइनस 1/7। ये कैलकुलेट करके मेरे पास तीनों का ये मेरे पास सॉल्व करके आ गया 5/21 इसका गेन आ रहा है मेरे पास, एंड देन नेक्स्ट 1/21 सैक्रिफाइस है और इसका 4/21 सैक्रिफाइस। अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, दिस टाइप आई हैव सॉल्व्ड। नाउ व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री टू बी पास्ड। एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करते हैं, द गेनिंग पार्टनर इज गोइंग टू कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर है एल, एल इज गोइंग टू कंपेंसेट एम एंड एन। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बन गई, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। अब हमने 5/21 किसका कैलकुलेट करना है, 1,47,000 का। जितना इस टोटल आया तीनों का उसमें से कितना गेन हुआ वो किसको कंपेंसेट करेगा, एम और एन को। तो मेरी ये एंट्री के अंदर अमाउंट आ गई, इसको कैलकुलेट करके 35,000 एंड हेयर 1/21 एंड 4/21 कैलकुलेट करके आ गया 7,000 एंड 28,000। सबसे पहले स्टेप करा, प्रॉफिट या लॉस निकाला,
जनरल रिजर्व क्लियरली रिटर्न, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मैंने इसी में ऐड कर दिया, गुडविल को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया कैलकुलेट करके। देन आफ्टर दिस चेंज इन रेशियो और मैंने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कैपिटल अकाउंट बनाना और रिवाइज बैलेंस शीट बनाना। एंड देन कैपिटल अकाउंट हैज टू बी मेड, मैं इस पार्ट को रब कर रही हूँ। Just note down all these points. These points will be helpful to you whenever you are going to revise your question. Clear? Now I am going to make capital account and balance sheet. Firstly, capital account, only one entry is there. Capital account. विदाउट कैपिटल अकाउंट भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि एक ही एंट्री है, डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं। LMN, सबसे पहले आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल के बैलेंस दैट आर गिवन इन द बैलेंस शीट दैट इज 2 लाख 1 लाख एंड 80,000, 2 लाख 1 लाख 80,000। अब सिर्फ एक ही जनरल एंट्री है, दिस इज टू बी पोस्टेड हियर। कैसे करेंगे एंट्री पास? L का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो L के डेबिट के अंदर मैं अमाउंट लिखूंगी, बट द ऑपोजिट अकाउंट टू बी रिटन हियर, 2 M's कैपिटल 2 N's कैपिटल, अमाउंट 7,000 एंड 28,000। M और N का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इनके क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे, नेम ऑपोजिट बाय L's कैपिटल। M में है 7,000 एंड हियर 28,000। Now just find out the balances after 2 lakh, 1 lakh 7,000 and then 1 lakh 8,000, and here also 1 lakh 8,000, 1 lakh 7,000 है total and then 2 lakh, 2 balance carry down। अब हमारे पास इनके बैलेंस आ गए हैं, इसका 1 lakh 7,000 और यहाँ पे टोटल है 1 lakh 8,000 और यहाँ पे 2 लाख में से फर्दर ये मैंने माइनस कर दिया और इसका बैलेंस मेरे पास आ गया 1,65,000। Now the balance sheet is to be made. Assets, liabilities, amount, all the contents, because we are not going to make changes, we are not going to record change, इसलिए सारी बैलेंस शीट के कंटेंट्स वही रहेंगे जो आपको पहले गिवन है, हमने कोई चेंज नहीं करना। एज इट इज बैलेंस शीट के सारे कंटेंट्स लिख दो, कैश इज गिवन एंड देन 8,000, सेम वही वैल्यूज। डेटर्स हैं 72,000 आफ्टर प्रोविजन एंड देन स्टॉक 1,80,000 एंड देन स्टॉक के बाद है फिक्स्ड एसेट्स 2,20,000, नो चेंज। And here also, here creditors 58,000, general reserve because we haven't distributed it as it is 42,000, सिर्फ एक चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? These capitals are to be written here only, LMN, L का 1,65,000, then 1,07,000 and then 1,08,000, otherwise no change in the balance sheet because we are not going to record the altered values। अब ये लास्ट में बस ये हमारे पास बैलेंस आ गए और ये बैलेंसेस को रिकॉर्ड करके दिस इज अ क्वेश्चन कि वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द चेंजेस, सेम बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट वी हैव टू मेक एंड ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टू रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू दिस। I hope this question is clear to you. Hardly 2 questions are there regarding this topic, just solve that question. If there is any query, so you can let me know by just writing the question in the group. I'll solve that question also. Again I am telling you, I have not considered this topic in your assessment that we are going to take now. That is on Wednesday you are having your test and in that your total 40 marks paper will be there, 10 marks आपका objective है and then 30 marks में your questions of 3 marks, 4 mark and 6 mark will be there. Just do your paper nicely, neatly and all the best for your assessment also. Thank you. Have a nice day.